A very good morning to all students and welcome to Edufly JNET Prabal batch. Like in previous class, I have discussed about the reproduction in organisms, the first chapter of class 12th, and today I am going to discuss the questions on this chapter, that is reproduction in organisms. So let's see the first question. Which one of the following statement is not correct? The four statements are given and you have to say which is not correct. Okay, see, offspring produced by the asexual reproduction are called clone. This is right, क्योंकि जो बेबीज होते हैं asexual reproduction के, क्लोन किसको कहते हैं? जो मॉर्फोलॉजिकली, जो बाहर से उनका अपीयरेंस एकदम आइडेंटिकल हो, मीन्स दे आर सेम. सो दिस इज द राइट स्टेटमेंट. सी द नेक्स्ट वन, दिस इज द राइट वन. Next is microscopic motile asexual reproductive structures are called zoospores. In my previous class I have discussed about the asexual reproductive structures. Zoospores है और भी बहुत सारे structures हैं, तो इसको zoospores जो है asexual है, sexual नहीं, asexual reproductive structures. कुछ organisms zoospores के through reproduce करते हैं. Okay. Next, see the third point. In potato, banana and ginger, the plantlets arise from the internodes present in modified stem. तो मैं बता दूँ, ये तो potato, banana and ginger, the plantlets they will arise not from internodes, they will arise from nodes. Nodes internode, जैसे कि मैं आपको एक डायग्राम, जैसे ये अदरक है, सपोज अदरक है, इसमें ऐसे लाइनिंग होती है, this lining, you all have seen this lining. So this lining is known as nodes. And the space between the lining, this one, this is known as internode. Okay, space between the two nodes, this is one node, this is the other node, this space is known as internode. So what happens in case of banana, potato and ginger, the plantlet will arise from node part. इस part से नया plant हो जाएंगे, नए ginger होंगे, लेकिन internode से नहीं होता, node से होता है. So this is the wrong statement according to question. This is the option. Next, see, water hyacinth growing in the standing water drains oxygen from water that leads to death of the feces. ये सही है. वाटर हाइसिंथ का एग्जाम्पल बहुत कॉमन, किसका एग्जाम्पल ये? ऑफसेट. आई हैव शोन यू विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम इन माई प्रीवियस क्लासेस. वहाँ पे मैंने बताया है कि अगर वो ज़्यादा हो जाते हैं पॉन्ड में तो वो ऑक्सीजन जो है प्लांट से, आई मीन जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म से, उनकी ऑक्सीजन जो है छीन लेते हैं. तो क्या होता है बेसिकली, वो जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म फिशेस मर जाते हैं. ठीक है. सो दिस इज द राइट ऑप्शन. नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. सो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग जनरेट्स न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशंस लीडिंग टू वेरिएशन? न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशंस होगा एंड दैट विल हेल्प इन द वेरिएशन, दैट इज एवोल्यूशन यू कैन से. सो सी द ऑप्शंस. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है? प्लांट्स के केस में होता है. That doesn't lead to like genetic variations, right? ये plants के केस में होता है. Parthenogenesis क्या होता है? ये क्या होता है? Gamete formation. Without gamete formation reproduction होता है, तो ये तो गलत है. Parthenogenesis. Sexual reproduction is the only mode of reproduction जहाँ new genetic recombinants produce होते हैं and that will leads to variation. So your option will be C. See next question. Which of the following pairs are not correctly matched? Which are not correctly matched? देखो, offset mode of reproduction is given, an example is given. You have to see which is not matched. Offset ये सही है. This is right. Water hyacinth, very common example. Offset, water hyacinth. Rhizome, banana. Nodes, I mean nodes of stem से मतलब banana होता है. Binary fission, sargassum, no. Sargassum is a they don't reproduce by binary fission, they reproduce by asexual means of reproduction, that is fragmentation. And sargassum is a diploid sporophyte. So this is the wrong answer, that is according to this is not matched. Conidia, example is penicillium. Penicillium कैसे reproduce करते हैं? With the help of conidia. So very interesting question. So let's see next question. So let's see this question, very interesting question. Select the wrong statement. The four statements are given and you have to select the wrong statement. Okay, so see the statements. Isogametes are similar in structure, function and behavior. Isogametes are similar in structure, function, behavior. This is the right. Isogametes का मतलब ही होता है, iso means same. Iso का मतलब ही होता है same.
ओके, तो ये सही है। एनाइसोगेमेट्स आइदर डिफर इन स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड बिहेवियर। एनाइसो एंड आइसो मतलब आइसो से अलग है, तो मतलब स्ट्रक्चर फंक्शन में डिफरेंसेस होगा। नेक्स्ट इज इन oomacetes फीमेल गैमेट इज स्मॉलर एंड मोटाइल while मेल गैमेट इज लार्जर एंड नॉन मोटाइल। ओके, तो देखो oomacetes जैसे कि फीमेल गैमेट क्या होता है, इन oomacetes क्या होता है, फीमेल गैमेट इज लार्ज एंड इट्स नॉन मोटाइल। मेल स्पर्म क्या होता है, वो बहुत छोटा होता है बट वो मोटाइल मूवमेंट करता है। तो अकॉर्डिंग टू दैट दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट कि फीमेल गैमेट स्मॉलर नहीं, फीमेल गैमेट बड़ा है, मैंने डायग्राम के साथ दिखाया है आपको। और मोटाइल क्या है, मोटाइल मेल गैमेट, मेल गैमेट्स जो है मोटाइल मूवमेंट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज क्लेमिडोमोनास एग्जिबिट बोथ आइसोगेमी एंड एनाइसोगेमी। क्लेमिडोमोनास दोनों फंक्शन शो करता है, आइसोगेमी भी एनाइसोगेमी भी। और फ्यूकस जो है ओगमी शो करता है। ओगमी मतलब क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल स्पर्म, दैट इज मोटाइल मेल स्पर्म यू कैन से, एंड नॉन मोटाइल फीमेल एग इज नोन एज ओगेमी। फ्यूकस के साथ और भी ऑर्गेनिजम्स है लाइक क्लेमाइडोमोनास, देन वॉल्वॉक्स, इसके साथ ये सारे ऑर्गेनिजम्स भी ओगेमी शो करते हैं। नो नॉट क्लेमाइडोमोनास ऑलरेडी आइसोगेमी एंड आइसोगेमी शो कर दिए। वॉल्वॉक्स हैं और भी एग्जाम्पल्स हैं, अब देख लेना, फ्यूकस है, वॉल्वॉक्स है, ठीक है। चलो सो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन। प्रोड्यूस ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जनरली जनरेट्स। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्शन जनरली क्या जनरेट करेगा? पहला है लॉन्गर वायबिलिटी ऑफ सीड्स, प्रोलॉन्ग डॉर्मेंसी, न्यू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशंस एंड लार्ज बायोमास। ये तो गलत है, बिकॉज लार्ज बायोमास और ये जो प्रोलॉन्ग डॉर्मेंसी है और लार्जर वायबिलिटी ऑफ सीड्स, ये सारे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की पार्ट ही नहीं है। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन होगा लीडिंग टू वेरिएशन ऑफ स्पीसीज, नया जेनेटिक कॉम्बिनेशन मिलेंगे और नए स्पीसीज फॉर्म होंगे, न्यू ऑफस्प्रिंग फॉर्म होंगे, एंड दैट विल लीड टू वेरिएशन एंड और कंटिन्यूटी यू कैन से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। अब आपको बताना है कौन सा करेक्टली मैच है। जिंजर, ये सारे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के पार्ट है। जिंजर जो है राइजम होता है, इनका राइजम उससे प्रोड्यूस होते हैं। ऑनियन बल्ब, ये सही है, करेक्ट मैच, ये सही है। क्लेमाइडोमोनास का क्या होता है, ज़ूओस्पोर्स। क्लेमाइडोमोनास शक्कर नहीं होता है, क्लेमाइडोमोनास रिप्रोड्यूस बाय विद द हेल्प ऑफ ज़ूओस्पोर्स। ईस्ट क्या होता है, बडिंग होता है, समझ में आया? ईस्ट जो है रिप्रोड्यूस बाय बडिंग, बड फॉर्म होता है। ओके, सो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन, द आइज ऑफ पोटैटो ट्यूबर। अब देखिए एक बहुत कॉमन एग्जाम, पोटैटो में छोटे आपने देखा कि बहुत दिन आप पोटैटो रख देते हो ना, तो क्या होता है कि अगर आप उसे लाइक इफ़ यू यूज़ फॉर फार्मिंग, तो क्या होगा कि ये जर्मिनेटिंग बर्ड होते हैं। जर्मिनेटिंग मतलब उसे नए आलू निकल सकता है, जर्मिनेटिंग बर्ड्स। ओके, और कुछ आइज़ होते हैं उसके, छोटे आइज़, और उस आइज़ के अंदर क्या होता है, एक्सिलरी बर्ड्स प्रेजेंट द स्केल ऑफ दैट लीव्स। इसमें इसके अंदर जो आइज़ के अंदर क्या होता है, एक्सिलरी बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। फ्लावर बर्ड्स, शूट बर्ड्स, फ्रूट बर्ड्स तो होते ही नहीं है ना। चलो, तो ये है पोटैटो का बहुत फेमस एग्जाम्पल। सी इन oogamy फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व्स। oogamy, सबसे पहले oogamy अगर आता है तो यू हैव टू थिंक ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। oogamy द फॉर्मेशन ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। oogamy में क्या होता है, oogamy में फीमेल क्या होती है, फीमेल इज ऑलवेज नॉन मोटाइल, दैट इज स्टेशनरी एंड इट इज लार्जर देन मेल। और मेल क्या होते हैं, स्मॉल एंड मोटाइल, मूवमेंट करता है, स्पर्म ऑलवेज मूव्स। So see the option, a small non-motile female gamete and a large motile male gamete। ये तो सरासर गलत। A large non-motile female gamete and a small non-motile male gamete, ये भी गलत क्योंकि मेल तो मोटाइल होता है। A large non-motile female gamete and a small non-motile male gamete, ये भी गलत है। A large motile female gamete and a small, नहीं ये सही होगा, ये गलत है। A large non-motile female gamete एंड ए स्मॉल मोटाइल होगा इसका ऑप्शन। तो एक लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट है और स्मॉल जो है मोटाइल मेल गैमेट, दिस इज द राइट, और ये भी गलत।
तो इन चारों में से ओगेमी का फॉर्मेशन है द थर्ड ऑप्शन. ओके, सो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन. A population of genetically identical individuals obtained from asexual reproduction. Identical होगा and asexual reproduction से जो भी organisms निकलेंगे that has a terminology and that is callus तो plant है, that is clone. dim aggregate मतलब combination होता है, so your option will be clone. Okay. See next question, what is syngamy? Syngamy मैंने very first line of sexual reproduction is that syngamy is the fusion of both male and female gametes. क्या होता है? Fusion of male and female gametes has a terminology and that is known as syngamy. That is known as syngamy. So according to that your option will be A. That is fusion of gametes. Fusion of cytoplasm नहीं होता है, too similar नहीं होता है, तो डिसिमिलर नहीं होता, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है, दैट इज बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, दैट इज सिनगैमी. ओके, सो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन अगेव. अगेव इज द वेरी कॉमन एग्जांपल्स. इट हैज बीन गिवन इन एनसीईआरटी बुक विद द प्रॉपर डायग्राम. इट ऑकर्स थ्रू राइजम, स्टोलन, बुलबिल्स, सकर. दिखेगा ऐसे नीचे लाइन में लिखा हुआ है बुलबिल्स ऑफ अगेव. ठीक है, वेरी कॉमन लाइन फ्रॉम एनसीईआरटी बुक इटसेल्फ, सो योर ऑप्शन विल बी सी. न्यू बनाना प्लांट्स डेवलप फ्रॉम राइजम, सकर, स्टोलन, सीड. सीड से तो होता नहीं है, स्टोलन नहीं है, राइजम तो किसका था? राइजम जिंजर था, है ना, पोटैटो था, तो होगा सकर. सकर क्या है? सकर इज द सब एरल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम. सब एरल मॉडिफिकेशन जैसे कि आपका जो जैसे कि क्या है, बनाना प्लांट है ना, ये रूट है ना, तो इसका जो स्टेम है ना, ऊपर वाला पोर्शन, एकदम नीचे का जो स्टेम का पोर्शन है, वहाँ से नए प्लांट की अराइज करना, उसी को कहते हैं सकर. ओके, सो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन. देखो, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स. कॉलम 1 इज गिवन and column 2. So you have to match the following. The first chapter even I have given you the terminology. Okay, तो देखिए, pistils fused together, इसको क्या कहेंगे? syncarpus. This is known as syncarpus. Formation of gametes is known as gametogenesis. This is a terminology known as gametogenesis. Hyphae of higher plants is always dikaryotic. Okay, next unisexual flower is known as pistillate. सो इन ये चारों का मैच द फॉलोइंग ये हुआ, तो ऑप्शन है ये, ए का 3, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 2. ओके, सो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस गैमूल्स एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स. गैमूल्स का नाम सुनते ही आपको याद होगा बहुत अच्छे तरीके से, एनसीईआरटी बुक में ब्लॉक वर्ड में लिखा हुआ है, लाइक ब्लैक में. हाइड्रा, स्पॉन्जेस, पेनिसिलियम, क्लेमाइडामोनस. पेनिसिलियम कॉनिडिया था, हाइड्रा बडिंग था, क्लेमाइडामोनस भी नहीं होगा. स्पॉन्जेस, दे हैव दिस गैमूल्स एज देयर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. फ्लैजिलेटेड, मोटाइल भी है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड मेगास्पोर्स. तो दूसरे आप प्लांट किंगडम पे पढ़ोगे, मेगास्पोर नहीं है, माइक्रोस्पोर भी नहीं है, प्लानोस्पोर्स भी नहीं है, तो ऑप्शन इज जूओस्पोर्स. जूओस्पोर्स मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने बताया विद द एग्जांपल जैसे माय नोट्स, तो इसका आंसर होगा जूओस्पोर्स, इसका होगा स्पॉन्जेस. ओके, सो विद दिस आई हैव completed today's questions, that is reproduction in organisms. Just revise the notes, see NCERT book and solve as many questions as you can. And if you have any doubts regarding any question, just email me, WhatsApp me. You can ask me by any mode of communication. Okay, so with this I'll conclude my class today. Thank you so much.